इन्होंने जाने पर उक्त वाहन पर सो शायद ये रूल नोटिस हो चुके हैं, कंसीडर किया ये aspect. It would appear then it हम तो आ नहीं रहा सत्यम अग्रवाल उसका पैनल चेंज हो अभिनव श्रीवास्तव में also be supplied for list next week. my lords. वो 98 का केस है माइलर, काउंटर ब्लास्ट है, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, कोई डेट नहीं है। हमारे लड़के ने तलाक का मुकदमा फाइल किया, उसके बाद इन्होंने जाकर के रिपोर्ट की। ये हमारे पास रहती भी नहीं थी, हमने अपने लड़के को निकाल दिया था। इन्होंने दहेज देने के लिए महिला थाने में शपथ पत्र घोषणा पत्र दिया था, जिस पर हमारे लड़के ने आपत्ति की, वो सारा रिकॉर्ड पे। उसके बाद इनको सिविल केस को इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए क्रिमिनल केस, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। This is actually the 7th attempt for the same relief, or similar relief. Initially, writ petition was filed seeking quashment of FIR, that was rejected. Writ appeal was filed, that was dismissed. Thereafter, a 482 was filed, wherein it was played that entire criminal proceedings connected with the FIR may be set aside. That was rejected. Thereafter, order framing charges was challenged. That was rejected as not maintainable. पहले आपकी खारिज हो चुकी है। मतलब वो अलग अलग ग्राउंड पे, अभी हमने पूरी क्वेश्चन मांगा। आप अलग अलग ग्राउंड पे थोड़ी ना उठा देंगे, हर बार अलग उठाएंगे क्या? नहीं मतलब काउंटर ब्लास्ट का जो you have to raise all the grounds in one petition at one time. नहीं वो अलग अलग थी, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर्स आपने फाइल किए हैं जी मतलब रिस्पोंडेंट फाइल में ऑर्डर्स हमने रिप्लाई के साथ फाइल किए हैं, R31, R32, R33, और उसमें लिस्ट भी पूरी फाइल की। ये पिटीशन है मैडम WP, इसमें हमको लिबर्टी दी गई थी कि आप जो है, हमने सारे केसों को कंसोलिडेट करने के लिए लगाई थी कि जो 125 का चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा है, उन सबको जबलपुर में कंसोलिडेट कर दिया जाए फैमिली कोर्ट के लिए। तो वो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, वो ऑर्डर किया मैडम कि नहीं आपके पास सेपरेट रिलीफ है, आप सेपरेट रिलीफ में जाइए मैडम। फिर इसके बाद जो है मैडम दूसरी इन्होंने पेश की है 19,949, ये हमने 482 लगाई थी FIR के लिए मैडम। ये हर्ड किया गया मैडम 5/12/2017 को, और ऑर्डर किया गया है मैडम 7/12/2017 को। तो व्हाट इज द रिलीफ यू आर प्रेइंग फॉर? क्वैशिंग? तो उसमें क्वेश्चन मांगी थी FIR की मैडम। इसमें क्या मांग रहे हैं? इसमें हमने पूरी एंटायर चार्जशीट मांगी और क्रिमिनल केस जो चल रहा है वो मांगा है मैडम। तो एक ही बात है। पेज 14 में देख ले मेरे रिप्लाई की ये एस्पेक्ट डील किया जो ग्राउंड पे। तो आई विल डिसमिस योर केस। कहाँ पे है आपका जब यस रिप्लाई फ्रॉम 342 onwards, इसमें my lord इंटरनल पेज 15 में it has been found by this honorable court in the last paragraph it would be appropriate to mention here that questioning of criminal proceedings at pre-trial stage can only be considered if material produced by you are referring to annexure? my lord, my reply में पेज बताइए। reply का internal page is 15 my lord। 14 yes पढ़िए। second last paragraph। Yes. In the present case, just above that, it would be appropriate to mention here that questioning of criminal proceedings at pre-trial stage can only be considered if the material produced by the accused is of sterling and impeccable quality, sufficient to persuade the reasonable man to condemn actual basis of allegations made as false. In the present case, it is not so. The matter relied by the accused petitioner is required to be tested at the anvil of the cross-examination. The material does not rule out the assertions contained in the charges leveled against the petitioner. In other words, the material is not sufficient to reject and overrule the factual assertions contained in the complaint. The material produced by the accused petitioner has to be examined and it cannot be justified at this stage. It is also not appropriate to say that that trial would result in an abuse of process of court and would not serve the ends of justice. So, my lord, this was what was found. It's pursuant thereto when the charges were challenged before the learned sessions court, and the criminal revision with that regard was rejected. In the next order, it was challenged. कुछ नहीं, आपकी रिवीजन भी खारिज हो गई है। मतलब रिवीजन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि वो जो 19,000 वाला जो WP का MCRC का जजमेंट था उसके कंप्लायंस में चार्ज हमने चैलेंज किए, चार्ज नहीं बनते, वो हमारी रेमेडी थी माय लॉर्ड। चार्ज नहीं बनते, जनरल चार्ज लगाए हैं,
ओमनिबस एलिगेशन है। अब इसके बाद हम खारिज हो गई ना आपकी? हाँ, मतलब वो खारिज हो गई। अब उसका मालूम हमने जो डॉक्यूमेंट पेश किया petitioner पेज नंबर 135 देख लीजिए जो हमने 226 of the Constitution of India for quashing of charge sheet. Counsel appearing for respondent intervened at initial stage and submitted that earlier petitions filed by petitioner for quashing of charge sheet and against framing of charge has already been dismissed. Heard the counsel for the parties since earlier petitions filed by petitioner for similar reliefs has been dismissed. Therefore, no interference is called for at petition. मेरा सबमिशन लिख दीजिए। मैंने काउंटर ब्लास्ट के ऊपर जो रूलिंग पेश की, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, काउंटर ब्लास्ट है यदि तो वो कभी भी किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। मैंने रूलिंग पेश की है। आपने कर लिया ना चैलेंज, खारिज भी नहीं हो नहीं गया। मतलब उस समय वो रूलिंग आई नहीं थी, मतलब 2020 की है मालूम। और ये हमने जस्टिस रूलिंग आएगी तो आपको कोई सब्सिक्वेंट कॉज ऑफ एक्शन या ग्राउंड मिल जाएगा क्या? नहीं मतलब 135 नंबर का पेज देखिए। डोमेस्टिक वायलेंस में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि ना तो वो हमारे साथ कंसीडर्ड